अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। आज है रमज़ान सीरीज सेकेंड लास्ट एपिसोड, जिसमें बच्चों मैं आपको सुनाऊंगी 41 इस्लामिक मोरल स्टोरी में से एक और मजे की स्टोरी। The repentance of the killer of 100 people. Once there was a man who killed 99 people. However, he regretted his wrong actions and wanted to repent. एक दफ़ा एक आदमी था जिसने 99 लोगों का कत्ल किया था, लेकिन वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा था और तौबा करना चाहता था। He went around to look for a religious person to help him and finally he found a man. उसने मजहबी लोगों के बीच उठना बैठना शुरू किया और फाइनली उसे एक इंसान मिला। He explained everything to the religious man and asked him. उसने अपनी पूरी कहानी उस मजहबी इंसान को सुनाई और उससे कहा, If I repent, will Allah accept it? उसने कहा कि अगर मैं तौबा करूंगा तो क्या अल्लाह ताला उसे कबूल कर लेंगे? The religious man replied, No, surely your repentance will not be accepted. मजहबी इंसान ने कहा कि नहीं, तुम्हारी तौबा बिल्कुल भी कबूल नहीं होगी। The man got so angry with the religious man that he killed him and the total number of people killed by the man reached 100 people. उस इंसान को, उस मजहबी इंसान पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे भी कत्ल कर दिया और अब उसने टोटल 100 लोगों का कत्ल कर दिया था। However, the man still wanted to repent, लेकिन अब भी वो तौबा करना चाहता था। He was introduced to a virtuous man और वो मिला एक नेक आदमी से। The man told him that he had killed 100 people and asked him, Will Allah accept my repentance? वो उसने उस आदमी को बताया कि मैंने 100 लोगों का कत्ल किया है और उससे पूछा कि अल्लाह ताला मेरी तौबा अब भी कबूल कर लेंगे? The virtuous man said, उस नेक आदमी ने कहा, Allah is the most merciful and you still have the chance to repent as long as you are still alive. उसने कहा कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है और तुम्हारे पास तब तक मौका है तौबा करने का कि जब तक तुम जिंदा हो। The virtuous man asked him to go to a city where its people glorify Allah. उस नेक आदमी ने उससे कहा कि तुम उस शहर में जाओ जहाँ पर लोग अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं। The man also must not to return to his city. और उसने उससे कहा कि तुम अपने शहर वापस मत आना। The man was very delightful to hear the explanation from the virtuous man and set out for his journey. वो आदमी उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वो अपने सफ़र पर निकल गया। Unfortunately, halfway through his journey, the man fell ill and died. बदकिस्मती से वो अपने आधे सफ़र में ही बीमार हो गया और मर गया। He died before he could get to the city. इससे पहले कि वो शहर में पहुंचता, वो मर गया। He was going to and he did not have to chance to repent. और उसे तौबा करने का मौका ही नहीं मिला। After the man died, 2 angels come. जैसे ही वो इंसान मरा, उसके पास 2 फरिश्ते आए। One of the angels said that the man belonged in heaven because of his intention to repent. एक फरिश्ते ने कहा कि इसको जन्नत में लेकर जाना चाहिए क्योंकि इसकी तौबा करने की नीयत थी। But the other angel said that the man belonged in hell because he did not repent for his sins yet. लेकिन दूसरे फरिश्ते ने कहा कि नहीं, इसको दोज़ख में लेकर जाना चाहिए क्योंकि इसने तौबा तो अभी तक की ही नहीं थी। Allah sent down a messenger to the angels. अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों के पास एक मैसेंजर को भेजा। The messenger said, Measure the distance between the place where he died and his home as well as the distance between the place where he died and his destination. He belongs to the place here is nearer to. उस मैसेंजर ने कहा कि तुम लोग रास्ता नापो जहाँ ये मरा है वहाँ से इसके घर तक का और जहाँ ये जा रहा था वहाँ तक का, और जिस भी जगह के ये ज़्यादा करीब हो उस हिसाब से उसको ले जाना। The angels measured the distance and found out that the man was closer to the city he was going to. और जब फरिश्तों ने रास्ता नापा तो उन्होंने देखा कि वो शहर से ज़्यादा करीब था जहाँ वो तौबा करने जा रहा था। The angel of mercy collected his soul and all of his previous sins were forgiven by Allah. और रहमत के फरिश्ते ने उसकी रूह को कब्ज़ किया और अल्लाह ताला ने उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए। So the wisdom of the story is Allah is the most merciful and we must always ask for forgiveness from Allah and repent. तो इस कहानी का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है और हमें अल्लाह ताला से अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और तौबा करनी चाहिए। तो इसलिए बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें कम से कम गुनाह करने चाहिए और एक गलती को बार बार नहीं दोहराना चाहिए।
और अगर हमसे कोई गलती या गुनाह हो जाए तो हमें फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप रमज़ान सीरीज़ का लास्ट एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।